Hello friends, welcome to iExamB. I'm Arunima, ex-manager SIDBI, and in today's session we are going to see general awareness for SIDBI Grade A exam, from where questions are asked and also how you should prepare. Okay, just wanted to remind you to subscribe the channel if you are yet to subscribe, because in coming days many important videos are going to be uploaded, especially for SIDBI Grade A exam. Also, every day we are uploading concept check videos for all the subjects. So if you are a beginner or if you feel that your concepts are not clear, you must go through all those CPSS videos. Those are concept पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे. Quickly, let us see what are going to be our takeaways. So first we'll see from where questions are asked in general awareness paper, because nowadays 50 questions would be there in general awareness, and then in-depth analysis of GA questions asked in SIDBI exam held on April 16, 2022. After that, once we have the idea about the questions from the areas questions are asked, then from where to prepare. क्या sources होंगे, कहाँ से आप prepare करें, and then how to prepare. So if you see, out of total 50 questions, actually 50 questions, where the total number of questions 50, you will have 50 questions in your general awareness section. You see in the exam held on 16th of April 2022 of SIDBI, 13 questions from banking and 11 from government schemes. So these two areas are really important, not only in SIDBI but in other exams also, bank PO exams. In other exams also, actually we have seen that a good number of questions are asked from government schemes and banking. Then you can see from polity and governance 8 questions, and from economy 6, science and technology 1 question was there, and then capital and currency 2 questions were there. Then ranking 2, and then sports 1, reports and indices 5, and then appointments 1. So clearly you can see that which areas are more important, right? Now let us see the static and current affairs portions. अगर हम स्टैटिक की बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से थे और लगभग 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे. बट अगेन अभी हम देखेंगे स्टैटिक से क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस थे. और अगेन आई वुड लाइक टू से कि अभी स्टैटिक से 15 क्वेश्चन थे, 30%, बट स्टिल यू शुड फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स, बिकॉज इनडायरेक्टली ये स्टैटिक क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आपके जो करंट अफेयर्स है उनसे ही रिलेटेड है. अभी हम जब सोर्सेज देखेंगे वहां पे देखेंगे कि जो iExamB का बीपीडिया है वो कवर करता है करंट अफेयर्स को, लेकिन आप देखोगे कि किस तरह से वो करंट अफेयर्स को कवर करते हुए स्टैटिक जी को भी कवर कर लेता है. क्विकली एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये हाईलाइट करना चाह रही थी कि जो आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करोगे, everything which you are going to study for your general awareness, actually that is going to help you in your descriptive test also, because you can see here that in general awareness it is written general awareness with special reference to banking and financial sector and economic and social issues, right? And then in your descriptive test it is written you have to write 2 essays on financial or banking or economic and social issues in India. So whatever you are studying, whatever you are preparing for your general awareness, that is going to help you as content in your descriptive test. ओके, सो एक साथ 2 पेपर की आपकी तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे भी. और दूसरी बात, अगर आपको लगता है रीजनिंग और मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा स्कोर आपको दे सकता है आपके एग्रीगेट को इंप्रूव करने में. अगर सेक्शनल की बात करें तो पिछले बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 50 सिर्फ 7 पॉइंट समथिंग 7.75 ही था सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन जिनकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है वो जो आपको लगभग 160-70 स्कोर करना है रिटन में, उसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बन सकता है आपका जनरल अवेयरनेस, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें. सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बस पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है. ठीक है, क्लैरिटी है कि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जनरल अवेयरनेस के लिए. तो अब कहाँ से पढ़ें, सोर्स हमारा क्या होना चाहिए? तो मैं कहूँगी बीपीडिया, iExamB का जो बीपीडिया है ये आपके लिए बाइबल है. इस एग्जाम के लिए आप
इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिलीजियसली, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली फॉलो करें। अब आप देखोगे जो बीपीडिया है क्या, तो ये आई एग्जाम की एक्सपर्ट टीम 3-4 अलग अलग जगह से, 3-4 न्यूज़पेपर, पीआईबी, हर जगह से आपको निकाल करके जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इकट्ठा करके कंपाइल करके आपको बीपीडिया के फॉर्म में देती है। ठीक है, अब ये डेली भी आपको मिलता है, वीकली भी मिलता है और मंथली भी मिलता है। अब ये आपके ऊपर है, depending on how much time you want to devote, whether you are working or you are a student। अभी आप किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है जीए की, इन सब के बेसिस पे आप खुद इसको डिसाइड करेंगे कि आपको डेली बीपीडिया पढ़ना है या वीकली वाला पढ़ना है या मंथली वाला पढ़ना है। ठीक है, सो अगर आप डेली पढ़ पाए, जैसे मैं कहूंगी, अब चूंकि आपका एग्जाम लगभग 1.5-2 महीने का टाइम है आपके पास, तो आज से आप डेली बीपीडिया पढ़ना तो जरूर शुरू कर दें। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ आपके जनरल अवेयरनेस पे काम नहीं आने वाला, जैसा कि हमने देखा ये आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी काम आने वाला है, ये आपके इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा काम आने वाला है, क्योंकि एक बार आपको ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, फिनांस, बैंकिंग के बारे में अगर पता है कि आजकल क्या चल रहा है, तो देन यू विल बी एबल टू हैंडल क्वेश्चंस इन इंटरव्यू ऑल्सो। सो ये आप जो बीपीडिया पढ़ोगे एक्चुअली आपको 3 सेक्शन में हेल्प करने वाला है। जो पुराना है, कम से कम 4 महीने का जीके करंट अफेयर्स आपको देखना चाहिए। सो जो पिछले महीने जो बीत चुके हैं उसमें मैं कहूंगी आपके पास कम टाइम है तो आप मंथली देख लें, अगर आपके पास टाइम है तो आप वीकली देख लें। अब जो आगे आने वाले दिन है उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप आज से हर दिन डेली पढ़ना शुरू करें। जैसे ही आप हर दिन डेली पढ़ना शुरू करेंगे, जब वीकली बीपीडिया आएगा वो बहुत ही आसान लगेगा आपको, क्योंकि वो उसी डेली का फिर से एक प्रिसाइज मैनर में फिर से उसको वीकली बनाया जाता है ना। तो जब आप इसको वीकली को देखेंगे बहुत कम टाइम में यू विल बी एबल टू गो थ्रू, और इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू, है ना। और फिर उसके बाद मंथली, फर्स्ट राउंड में जस्ट गो थ्रू, सेकेंड राउंड में यू नीड टू हाईलाइट, उसको हाईलाइट करिए ताकि एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको रिवीजन में वो आपको मदद कर सके। अब जो हमारा बीपीडिया है ना, इस तरह से सेक्शंस में डिवाइडेड है, और बीपीडिया फ्री अवेलेबल है आपको आई एग्जाम के वेबसाइट पे, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। सो आप देखो ये जो सेक्शंस है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 and 8, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। ऑल ग्रीन कलर्ड आर लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको एक बार देख लेना है, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल अवेयरनेस में ज्यादा पोर्शन को कवर करेगा, आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में काम आएगा और इंटरव्यू में काम आएगा, वो आपके ये वाले पोर्शन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप करेंगे। अभी अमित सर की भी एक वीडियो आई है जनरल अवेयरनेस को लेकर के, उसमें उन्होंने इन सारे सेक्शंस को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही साथ ईएसआई के सिलेबस को भी, क्योंकि ईएसआई का लिखा है सिडबी के नोटिफिकेशन में, जीए में भी लिखा है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी, लेकिन कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है उसमें ईएसआई के लिए प्रॉपर सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन में ही। सो वहीं से हम आइडिया लेके, हाँ डेफिनेटली हम ईएसआई का आरबीआई वाला सिलेबस देखेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे वो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, यहाँ पे सिडबी ग्रेड ए का है। तो हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक तरह से वो एक इंडिकेटिव लिस्ट है हमारे लिए। सो उस सिलेबस को भी डिस्कस किया है अमित सर ने अपने वीडियो में। आप अगर उस डिटेल को देखना चाहते हैं तो मैं फिर से यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप उस वीडियो में देख सकते हो। साथ ही साथ लेट अस क्विकली सी कि बीपीडिया से करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा स्टैटिक क्वेश्चन भी कैसे कवर होगा। So on your screen you can see this is our daily BPedia for 20th of December। ठीक है, आप यहाँ पे देखो आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसमें जो फर्स्ट न्यूज है, बैंक्स रोट ऑफ ₹10 लाख करोड़ लोन्स इन लास्ट 5 years, फिनांस मिनिस्टर। सो ये न्यूज है। अब यहाँ पे इस न्यूज से अगर क्वेश्चन आ गया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव रिटन ऑफ लोन्स अमाउंटिंग टू
₹10 लाख 9,511 करोड़। यहाँ पे अगर अमाउंट पूछ दिया कि लगभग कितना पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में 5 सालों में कितना अमाउंट राइट ऑफ किया है कमर्शियल बैंक्स ने, तो वो आपका करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन राइट ऑफ होता क्या है, तो आप देखो यहाँ पे लर्न अलोंग में इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक चीजें हैं वो आपकी कवर हो जा रही हैं। अगर राइट ऑफ क्या होता है ये पूछ दिया तो उसके लिए वो आपका स्टैटिक क्वेश्चन माना जाएगा। लेकिन वो क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी वजह से वो न्यूज में था। उसी तरह से फिर अब यहीं पे आप देखो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिसेंटली इन्फॉर्म्ड द लोकसभा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। According to RBI data, public sector banks have recovered rupees 4,80,111 crore, including 1,03,045 crore from written off loans during the last 5 financial years. तो ये न्यूज हो गया। अब आरबीआई के बारे में, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके गवर्नर कौन है और 4 डिप्टी गवर्नर कौन है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर न्यू अपॉइंटमेंट हुई है किसी की तो वो करंट अफेयर होगा। लेकिन जो पहले से अपॉइंटेड है और कौन है अभी गवर्नर, कौन है 4 डिप्टी गवर्नर, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आप देखो कि हमारे डेली पीपीडिया में जो कि करंट अफेयर्स को कवर करता है, किस तरह से हम स्टैटिक क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत जिसके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। इस तरह के क्वेश्चंस आए थे अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था सिडबी ग्रेड ए का। तो आपको देखो, बैंकिंग से RBI has approved SBI Mutual Fund along with other SBI Group companies to hold a 9.99% stake in which private bank। ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया बैंकिंग से रिलेटेड। What does ECG ESG होना चाहिए यहाँ पे। What does ESG mean as per the SEBI norms। तो यहाँ पे ESG मीन करता है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, है ना। ये भी न्यूज में था इसीलिए ये क्वेश्चन आया। एंड एक्चुअली यहाँ पे ये स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये इसके मीनिंग पूछ रहा है। अदरवाइज ये न्यूज में था इसलिए ये प्रश्न पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ 10 बैंकिंग फ्रॉड्स ऑफ ₹4820 करोड़। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज द होली सब्सिडियरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक आपको अंदाजा लगेगा कि आपको जब बीपीडिया पढ़ना है तो किस एस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान में रखना। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल विधान, इसके बारे में था। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इस तरह की कोई भी स्कीम आती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। स्वामी स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री का है स्कीम, किस बारे में है, उसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो ऐसा कुछ एक्रोनिम है तो उसका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। पीएम मातृ वंदना योजना क्या है, किन के लिए होता है। कई बच्चों के लिए कोई स्कीम्स आती हैं, कोई महिलाओं के लिए आती हैं। तो इसी तरह से देखो, एक कंज्यूमर राइट्स डे का क्वेश्चन था कि क्या थीम है। अब क्यों, देखो अप्रैल में एग्जाम हुआ था 16 अप्रैल को, और मार्च में होता है कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। सो लगभग जिस समय आपका एग्जाम होता है उसके 2-3 महीने, जस्ट उसके 2-3 महीने पहले के जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसका थीम क्या है और किस डेट को वो मनाया जाता है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये भी कि कौन अपॉइंट हुए, ये भी ध्यान रखना होता है कि इसके पहले कौन थे। या क्या नंबर है उनका, वो 15th नंबर पे अभी आए या 16th है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हाउस प्राइस इंडेक्स से एक क्वेश्चन आया था HPI रिपोर्ट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, NFHS 5th रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, कंप्लीट पेपर विद आंसर एक्सप्लेनेशन, आपको उसका PDF लिंक मिल जाएगा। तो आप जरूर उसको देखें क्योंकि दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि आगे हमें किस तरह से पढ़ना है। आई एग्जाम भी वेबसाइट पे आपके मॉक टेस्ट भी फ्री हैं। सो आप सिडबी के मॉक टेस्ट लिख सकते हो, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर लिख सकते हो। अब आई एग्जाम भी किस तरह से आपको प्रिपेयर करता है इस एग्जाम के लिए 50% फास्टर। एज यू नो दैट आई एग्जाम भी प्रिपेयर्स यू 50% फास्टर। सो पहले तो बीपीडिया हो ही गया, जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा 500 प्लस MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एवरी मंथ यू गेट ऑन जनरल अवेयरनेस, जो कि ऑलमोस्ट 90% प्लस क्वेश्चंस को कवर कर लेगा।
देन इवेंट्स एंड सबमिट से जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपको समरी डॉक्यूमेंट मिलता है, मतलब पिछले हर मंथली, हर महीने में कितने इवेंट्स हुए वो एक साथ उसकी डिटेल, उस इवेंट से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से समरी डॉक्यूमेंट्स फॉर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, कि अब कोई रिपोर्ट है या इंडेक्स है तो वो रिपोर्ट कौन से नंबर का है, कौन रिलीज करता है, कौन पहले पोजीशन पे है, इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये आपको हम मंथली मंथली डेटा एक साथ वो आपको मिल जाता है। देन सिमिलरली समरी डॉक्यूमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, समरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कमिटीज, पीआईबी अपडेट्स, पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं कहूंगी बीपीडिया और पीआईबी, लेकिन अगेन पीआईबी बहुत वास्ट हो जाता है आपके लिए, और सिडबी के लिए उतनी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको काफी प्रिसाइज करके हम आपको पीआईबी के लिए वीकली वीडियोस देते हैं और डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो कि काफी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होता है। इसके अलावा 2 to 3 करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप फैकल्टी से रूबरू बातें कर सकते हो। हर हर हफ्ते में 3 क्लास तो आप लेकर चलें कि सिडबी के लिए आपको करंट अफेयर्स की मिल जाएगी, कम से कम 2 तो जरूर होगी। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पीडीएफ, वीडियोस एंड एमसीक्यूज। सो ये कंप्लीटली कवर कर देता है अगर आप, यू विल हैव फेथ इन अस एंड योरसेल्फ, और अच्छी तरह से इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली 50 में 40+ तक मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। और अगर आप जनरल अवेयरनेस में 40+ मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपके दूसरे सेक्शंस पे बहुत कम भार रहेगा। अगर मैथ्स में, रीजनिंग में, पजल में कुछ गफलत भी हो गई, ये टेक केयर कर लेगा। For any further query, you can call at 920-552-4028, or you can write to us at hello@isambhi.com. So thank you friends. Thanks for watching.